Now, the topic of today's message is Nicodemus. आज के प्रचार का जो शीर्षक है वह है निकोदेमस। The Hebrew name for Nicodemus is Nakdimon. और इब्रानी नाम निकोदेमस का है नकदीमोन। Nakdimon. NAKDIMON। So first we are going to start this message by reading John 3:16. यूहन्ना 3:16 पढ़कर हम शुरू करेंगे इस प्रचार को। Yes. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Everybody from child to the eldest person knows this verse by heart. और बच्चे से लेके वरिष्ठ लोग तक सब लोग इस वचन का स्मरण किए हैं। Now this is the gospel. This verse has been used as the gospel to everybody. To tell the gospel, this is the verse we use. और इस वचन को इस्तेमाल करते हैं जब किसी को सुसमाचार हमें बताना होता है। The Christians use John 3:16. और मसीही यूहन्ना 3:16 का इस्तेमाल करते हैं। Which verse the Jews use like this? और यहूदी लोग किस वचन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे? Anybody knows? क्या कोई जानता है? Yes, Sister Bhagya wants to answer. Christians use John 3:16 for gospel. What does? Praise the Lord, sir. Yes, yes. व्यवस्था विवरण 6:4। Fantastic. बहुत अच्छा। Deuteronomy 6:4 is the verse which the Jews use for telling their gospel. और यहूदी व्यवस्था विवरण का 6:4 इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार बताने के लिए। Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now, first question is, what is John 3:16? पहला सवाल है यूहन्ना 3:16 क्या है? We might say it is good news हम शायद कहेंगे ये शुभ समाचार है, or gospel. ये सुसमाचार है। This is preached by many people across the world for telling the gospel. और संसार भर में इस वचन का इस्तेमाल किया जाता है सुसमाचार बताने के लिए। But this is a gospel message preached to a single person by Jesus Christ. लेकिन ये एक सुसमाचार का संदेश है जिसे यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बताया था। This is a gospel message preached to a single person by our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को इसके द्वारा सुसमाचार बताया। John chapter 3:1 says he is a Pharisee. और यूहन्ना का 3:1 कहता है कि वे एक फरीसी थे। Whenever we say the word Pharisee, जब भी हम ये शब्द फरीसी कहते हैं, mind is normally thinking only bad about them. हमारे मन में ऐसा आता है कि उनके बारे में बुरा ही सोचते हैं। But we are going to discuss in detail about all the groups. लेकिन हम उन जो सब संप्रदाय है उनके बारे में हम देखेंगे। In Judaism, यहूदी धर्म में how many groups are there? कितने संप्रदाय हैं? Who knows the answer? कौन इसका उत्तर जानता है? If we say Christianity, अगर हम मसीही धर्म कहते हैं, actually I don't know how many groups, मैं सच में नहीं जानता कितने समूह बन चुके हैं। because the major we can say Roman Catholic, और ज्यादातर हम कह सकते हैं रोमन कैथोलिक, Protestant, प्रोटेस्टेंट्स, Pentecost. पेंटेकोस्ट। But inside that Pentecost, how many groups is there? We don't know actually. I लेकिन don't इस know. पेंटेकोस्ट के अंदर कितने समूह हैं हम नहीं जानते। Inside Protestant, Church of North India, Methodist, Baptist, Lutheran, so many divisions are going. और प्रोटेस्टेंट के अंदर चर्च ऑफ इंडिया और चर्च ऑफ गॉड और फिर Church of South India, साउथ इंडिया, Church of North India. ये सब कलीसियाएं हैं।
Church of God comes under Pentecost. और वह पेंटेकोस्ट के नीचे आता है, चर्च ऑफ गॉड। Okay. Now in Judaism, anybody knows how many groups are there? यहूदी धर्म में कोई जानता है कितने संप्रदाय हैं? Okay, I will tell you now. मैं आपको बताऊंगा। There are 5 sects of people. 5 संप्रदाय हैं यहूदी धर्म में। Yes, praise the Lord, praise the Lord. 5 sects of people. 5 संप्रदाय हैं। Who are those 5 sects of people? कौन है वो 5 समूह? Number 1, सबसे पहले Pharisee. फरीसी। They are neither rich people nor poor people. वे ना तो धनी हैं ना दीन हैं, They are middle class people. वह मध्यम वर्ग के लोग हैं। But they are very strict in following the law. व्यवस्था का पालन करने में बहुत ही सख्त। Always they will be thinking about the Torah. हमेशा तोरा को ही सोचते रहते हैं। This is group number 1, which is Pharisee. और ये पहला समूह जो है फरीसी। Number 2, दूसरा Sadduki. सदुकी। Zadek. Zadek means it is righteous. और ज़देक मतलब जो धार्मिकता। Now the Sadduki, they are very, very rich people. ये सदुकी लोग बहुत ही धनी होते हैं Millionaires and multimillionaires. और मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर होते हैं। There is a difference between Pharisee and Sadduki. फरीसी और सदुकी में एक फर्क है। Pharisees believe in resurrection of the dead. Sadduki doesn't believe in resurrection of the dead. और फरीसी जो हैं पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, लेकिन सदुकी जो हैं वह मृत होने के बाद पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। Why? क्यों? Because Romans don't believe in resurrection. क्योंकि रोमी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। The Roman government which is ruling that time, और उस समय जो रोमी सरकार अधिकार में थी, they don't believe. वह विश्वास नहीं करते। So the Sadduki also will not believe. तो ये सदुकी भी विश्वास नहीं करते थे। They want high positions of job in the government. और सरकार में बड़े बड़े पद वह लेना चाहते थे। So they want to go pleasing to the government. इसलिए सरकार को हमेशा खुश करने में लगे रहते। They want the high priest position. और महायाजक का पद भी चाहते थे। So the government will appoint the high priest. और सरकार ही महायाजक को नियुक्त करती थी। So all this, to balance all this, Sadducees was in a doesn't believe in the resurrection of the dead. और इन सब को संतुलन में रखने के लिए सदुकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किए। Now we know when Paul wanted to persecute the people, जब हम जानते हैं जब पौलुस लोगों को सताना चाहते थे, he went to the high priest to get a letter from him. महायाजक के पास गया वह एक पत्र को लाने के लिए। So this is the second group of people. और ये दूसरे समूह के लोग, Number 1, Pharisee. पहले है फरीसी, Number 2, Sadducee. दूसरा है सदुकी, Number 3, तीसरा Herodians. हेरोडियंस। We know the name Herod. हम ये नाम हेरोद जानते हैं। Who are the Herodians? ये हेरोडियंस कौन है? These are the people who God changed or saved. They were Edomites, but now they are changed to Judaism. और वह पहले इदोमी लोग थे, अभी वह यहूदी धर्म में आए। Who were the Edomites? ये इदोमी लोग कौन थे? They were the generation of Esau. ईसाऊ के वंश के लोग। Jacob and Esau, you know, no? The brothers. याकूब और ईसाऊ को आप जानते हैं, भाइयों को। So the generation of Esau is Edomites. और ईसाऊ के जो वंश हैं, पीढ़ियां हैं, वह एदोमी थे। If they are getting converted to Judaism from being Edomites, they are called Herodians. और जब एदोमी से वह यहूदी धर्म को ग्रहण करते हैं तो उन्हें हेरोडियन कहा जाता है। If you turn your Bible to Mark chapter 3 verse 6, अगर आप मरकुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6वां वचन आप पढ़ेंगे, yes, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। so now Herodians also want to be in power. और हेरोदी जो लोग थे वह भी शक्तिशाली बनना चाहते थे।
So this is the third group. तो ये तीसरा समूह। The fourth group, चौथा समूह, they are called zealots. उन्हें zealots कहते हैं। Zealots. Zealots। Yes, correct. Now the zealots are the rebel people. और ये zealots जो होते हैं, जो विरोधी जैसे, जो प्रतिशोध करते हैं, Always they will be against the government. और हमेशा सरकार के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। They say we won't pay tax. वह कहते हैं हम चुंगी नहीं भरेंगे। They say the government is not doing correct things. वह कहते हैं सरकार सही रीति से नहीं शासन कर रहा। They will have sword also with them. उनके पास तलवारें भी होती हैं। In the disciples of Jesus, और यीशु मसीह के चेलों में one person name was Simon the Zealot. एक का नाम था शिमोन zealot। So Matthew was also there as disciple of Jesus. और जो मती था वह भी यीशु मसीह का चेला था। Matthew, मती he is a tax collector. वो चुंगी लेने वाला, Simon the Zealot, और सिमोन जो zealot था, he is a rebel. He says he won't pay tax. और वह जो कहता कि मैं चुंगी नहीं दूंगा। Both are the disciples of Jesus. और दोनों यीशु मसीह के चेले। So both are going with Jesus. तो दोनों यीशु मसीह के संग संग चल रहे थे। Now you just imagine if these two people have to be kept calm, और ये सोचकर देखिए, अगर इन दोनों को शांति से रखना है, only Jesus can do that. सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। So one person is going to ask tax, one person is going to say we won't pay tax. और एक चुंगी मांगेगा, दूसरा कहेगा हम नहीं भरेंगे। So with the power of our Lord Jesus Christ, both were keeping calm, both were friends. हमारे यीशु मसीह के नियंत्रण में दोनों शांति पूर्वक थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The fifth group is called the SNS group. और पांचवा ग्रुप है जिसका नाम है SNS। ESSENES. ESSENES। These people won't talk much. ये लोग ज्यादा बात नहीं करते। They are the people who will be very calm. ये बहुत ही शांत रहते हैं। If for any action they do, they will think our holiness will come down. और वो जो भी कार्य करेंगे वो सोचेंगे ये करने से शायद हमारी पवित्रता घट जाएगी। So they will always keep quiet. इसलिए हमेशा चुप रहते हैं। Even looking at a person, they will say my holiness will come down. ये भी सोचते हैं किसी को देखने से हमारी पवित्रता घट जाएगी। In the south of Israel, और इस्राएल के दक्षिणी भाग में there is a place called Qumran. Dead Sea is there and Qumran caves are there. और वहां पर मृत सागर है और वहां पर कुमरान की गुफाएं हैं। कुमरान जगह है। These are the people who will live in those very, very isolated area. और ये लोग ऐसे बिल्कुल जो एकांत में रहने वाले लोग ऐसी जगहों पर। Now, why they are living outside? और क्यों वहां पर रहते हैं? They don't want to live in the city. वह शहर में नहीं रहना चाहते। They don't want to talk. किसी से बात नहीं करना चाहते। They don't want to look at people. लोगों को देखना नहीं चाहते। They want to be very holy outside. और अलग रहकर बिल्कुल पवित्र रहना चाहते हैं। One of the SNS boys was around 1940s. He was as a shepherd boy and he was taking care of his sheep near Qumran caves. और 1940 में एक लड़का था जो चरवाहा था और वहाँ कुमरान की गुफाओं के पास अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहा था। Exact year I don't know. और सही साल मुझे स्पष्ट नहीं पता। But after 1940. लेकिन 1940 के बाद की बात है। So normally these boys have a way of calling the sheep when it is in the evening. और शाम के समय इन भेड़ों को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है चरवाहों का। When the sheep is going and eating the grass. और जब ये जाकर भेड़ घास चर रही है। All the sheep will be distributed. It will be spread. और सारी भेड़ इधर उधर सब ऐसे बिखर जाती हैं।
what these boys will do, अभी ये लोग लड़के क्या करते हैं, they will take some stones, कुछ पत्थर उठाकर they will throw. वह उसे फेंकते हैं, When they throw the stone, और जब उस पत्थर को फेंकते हैं, it will go and fall beyond the sheep. और जहाँ पर भेड़ घास चल रही है उससे भी आगे जाकर पत्थर गिरता है, So all the sheep will run and come back. तो सारी भेड़ वापस भागकर इधर आ जाती हैं उनके पास। If the stone falls this side, the sheep will run that side. अगर पत्थर इस तरफ गिर जाए तो वो दूसरी दिशा में भाग सकती हैं। So what these boys will do, they will throw the stone all the sides, so all the sheep will come back. तो ये सब दिशा में पत्थर फेंकते हैं ताकि सब भेड़ें वापस आ जाएं उनके पास, And they will take the sheep and go और home. भेड़ को इकट्ठा करके वापस घर ले जाते हैं। This was their daily practice. और ये उनके रोज का जो रिवाज था। One day, this SNS boy threw the stone. एक दिन एक एसएनएस वो लड़के ने एक पत्थर फेंका, The stone went and fell inside the cave. और ये पत्थर जाकर उस गुफा के अंदर जाकर गिरा। When the stone went inside the cave, और जब ये पत्थर उस गुफा के अंदर गया, a peculiar sound came. एक बहुत ही अजीब आवाज आई, Top! टप। Normally, when the stone is falling down, this sound won't come. जब साधारण रीति से जब पत्थर गिरता है तो ऐसी कोई आवाज नहीं आती। So this boy was confused. तो ये लड़का भ्रम में पड़ गया, What happened? क्या हुआ है, He was thinking. वह सोच रहा था। So he thought, let me go and see inside the cave. उसने सोचा चलो मैं जाकर देखता हूँ उस गुफा के अंदर। So he went in and saw in the cave और जाकर जब गुफा के अंदर देखा, there was a pot, वहां पर एक मटका था, and that because he threw the stone, that pot is broken now. तो वह पत्थर गिरने से अभी वह मटका टूट गया। He brought the pot outside. उस मटके को वो बाहर लेकर आया, He broke the full pot. उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, Inside he saw something with leather, और अंदर देखा चमड़े का कुछ था, leather scroll. और चमड़े की जैसी स्क्रॉल थी, कोई पत्री। So what he did, he thought he will get some money. उसने सोचा चलो इससे कुछ पैसे मैं कमा लूंगा। He went to a shoe repair person. और जो जूते ठीक करता है उसके पास गया, He went and gave that to that person. और जाकर उस वस्तु को उन्हें दे दिया, And he asked, I want money. और कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। That person saw, उस व्यक्ति ने देखा इसको, he found out that there is something very special. और ये जाना कि इसके अंदर कुछ बहुत विशेष चीज है। So he thought that definitely we should get it. और उसने सोचा जरूर मुझे इसे ले लेना चाहिए इससे। So he asked him, how much money you want? उसने पूछा उस लड़के से कितने पैसे चाहिए। That boy didn't know anything. वो लड़के को कुछ पता नहीं था। He wanted to buy something sweet or eatable for that time only. उस कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट ही लेकर खाना चाहता था उस समय। So he just told one small amount, like example I am telling 20 rupees like that. बहुत छोटी रकम बताई, और जैसे 10-20 रुपए, But actually it is worth millions of rupees. लेकिन वह लाखों की मूल्य रखता था वह वस्तु। So what this man did, he gave that money and sent the boy. तो उस आदमी ने वो पैसे देकर उस लड़के को भेज दिया। So now this man went to the Israel archaeological department. और अभी ये मनुष्य इस चीज को लेकर पुरातत्व के जो डिपार्टमेंट था इस्राएल का, वहां पर लेकर गया। And they researched the scroll. और उसकी खोज और परख की उन्होंने। When they researched the scroll, और जब उस स्क्रॉल का खोज की उन्होंने, they found out this is the original handwritten scroll of prophet Isaiah. और ये जाना कि ये नबी यशायाह की अपने हाथ से लिखी जो पहली मूल जो स्क्रॉल था वो था वो। 66 chapters of the book of Isaiah was in that scroll. और उस पत्री में यशायाह के जो 66 जो अध्याय हैं सब वहां पर लिखे हुए थे। They were very thrilled. बहुत ही खुश हो गए। So now immediately what the archaeological department did, तो उस पुरातत्व डिपार्टमेंट ने क्या किया,
they came to the place where they found this scroll. और उस स्थान पर आए जहां उस लड़के को ये मिला था, And they searched the entire Qumran caves, all the caves. और उस कुमरान गुफाओं सबको खोजने लगे। And when they searched, और जब वो खोज किए they found out many books of the Bible. और बाइबल की बहुत सी ऐसी लिखित पत्रियां मिली उन्हें। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, today the Bible what you are holding in hand, आज जो बाइबल आप अपने हाथ में पकड़े हैं, the Jewish people have given. यहूदी लोगों ने दिया है। They have found out all the scrolls and they have compiled it and it was given. और ये सब पत्रियों का खोज किया, उसे इकट्ठा किया, एकत्र किया और ये बाइबल हमारे हाथ में Today आई। it is a complete book. आज ये पूरी पुस्तक है हमारे हाथ में। Before they did not have that much scrolls. उसके पहले उनके पास वो सब स्क्रॉल्स नहीं थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। You can imagine how brilliant was Prophet Isaiah. आप सोचकर देखिए कि नबी यशायाह कितने ही बुद्धिमान थे। 3,000 years. 3000 वर्ष, No pest, no insect, nothing has come and touched that pot. Wow. It is exactly safe. उस मटके के अंदर ना कोई कीड़े आए या कोई वस्तु आकर जो उसे खराब करती या कोई ऐसी चीज जो उस कागज को नाश कर सकती थी। He has kept it in such a place where no rainfall, nothing will come and destroy. ऐसी जगह पर रखा जहां पर बारिश या कोई भी चीज, जलवायु जो भी उसे खराब ना कर सके। The Dead Sea climate there is a wonderful climate. और मृत सागर की जो जलवायु है बहुत ही सुंदर जलवायु है। Many people in the world come to Dead Sea. और संसार भर से लोग वहां पर आते हैं। Surrounding the Dead Sea, there is lot of 5-star hotels. और उस मृत सागर के इर्द गिर्द 5 स्टार बहुत से होटल हैं वहां पर रहने के लिए। And they have brought the Dead Sea water inside their swimming pool. और ये मृत सागर का पानी भी वो अपने स्विमिंग पूल के अंदर लेकर आए हैं। The people come to swim in the Dead Sea. और लोग आते हैं उस मृत सागर में आकर तैरने के लिए। Why they swim in the Dead Sea? और क्यों उसमें तैरते हैं? Whatever skin diseases in the body will disappear. जो भी शरीर में तत्व में जो भी बीमारी है वो चली जाती है। The problem which the Sodom Gomorrah faced, और जो सोदोम और गोमोरा ने जिसका सामना किया था, the fire which fell on Sodom and Gomorrah, और जो अग्नि आकर सोदोम और गोमोरा पर पड़ी थी, God changed it into a blessing for Israel. और उसको एक आशीष में बदल दिया परमेश्वर ने इस्राएल के लिए। So when we go and swim in the Dead Sea, we will not go down. और मृत सागर में जब हम जाते हैं तो हम उसमें डूबते नहीं। Whether you know swimming or you don't know swimming, still you will be floating. आप तैरना जानते हैं नहीं जानते फिर भी आप उसके ऊपर ही रहेंगे, पानी के ऊपर। But if you have a skin problem, लेकिन अगर आपको किसी तत्व की कोई समस्या है, immediately your body will feel a burning sensation. और तुरंत आपके शरीर में जैसे जलन महसूस करेंगे आप। What is the meaning if you are feeling burning sensation? अगर आप जलने का आप एहसास करते हैं तो उसका मतलब क्या है? You are being healed. आप क्या चंगाई पा रहे हैं? The most expensive area. सबसे बहुत ही महंगी जो क्षेत्र है वहीं पर है। Israel has the income, very high income through the Dead Sea. इस मृत सागर के कारण इस्राएल को बहुत आमदनी होती है। They have 3 sources of income. और 3 प्रकार की आमदनी पाते हैं वो। Number 1, एक, income from Dead Sea. और मृत सागर से जो आमदनी आती है। Number 2, दूसरा, they have income from agriculture. और वह खेती बाड़ी से जो आमदनी आती है। Israel has challenged that we will provide food for the whole world. और इस्राएल ने ये चुनौती दी है कि हम सारे संसार को हम पोषण कर सकते हैं Throughout the year. सारे साल भर में। That much food they have. और उतनी उपज है उनके पास। Thirdly, the third income, और तीसरी आमदनी tourism. जो है टूरिज्म।
Many people come visit Israel and go. बहुत से यात्री आते हैं, वहां पर आकर देखकर जाते हैं वापस। The safest place in the world is Israel. सबसे सुरक्षित स्थान है इस्राएल। All the countries are threatening. सारे देश उसको धमकी देते हैं We are going to attack कि Israel. हम आक्रमण करेंगे इस्राएल पर। Still Israel is safe. फिर भी बहुत सुरक्षित है वो। Why? क्यों? It is the land of our Lord. क्योंकि वह हमारे परमेश्वर की अपनी भूमि है। Hallelujah. हालेलुया। It is called the Holy Land. और उसे पवित्र स्थान कहा गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now we have seen 5 sects of people. हमने देखा वो 5 समूह के लोग या संप्रदाय को देखा। Nicodemus is a Pharisee. और निकोदेमस एक फरीसी था। Pharisee means he is the Knesset member, Lok Sabha member, like that. और जैसे वह संसद का एक सदस्य, Before it was called Sanhedrin. पहले उस संसद को महासभा कहते थे। Today it is called Knesset. आज उसे केनेसेट कहते हैं या संसद कहते हैं। Before it was called Sanhedrin. उसके पहले उसे महासभा कहा करते थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now one question to you. आपसे एक सवाल अभी, Which group out of the 5 groups was Jesus Christ? यीशु मसीह इन 5 समूह में से किस समूह के थे? Who knows the answer? कौन इसका उत्तर जानता है? Yes, I think Sister Bhagya wants to answer. फरीसी थे, फरीसी थे। Fantastic. Pharisee is, Jesus Christ was a Pharisee. यीशु मसीह एक फरीसी थे, बिल्कुल सही कहा। But he is talking about whom? लेकिन अभी किसके बारे में कह रहे हैं? He is talking against Pharisee only. और फरीसी के विरुद्ध में ही कह रहे हैं यीशु मसीह। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you, Pastor Krista Bhag. I have seen your reply. पास्टर क्रिस्टोबर्ग, आपका जवाब मैंने देख लिया। Now, 3:1. John chapter 3 verse 1. यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। Yeah. फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। Now, there is a Pharisee named Nicodemus. अभी एक फरीसी है निकोदेमस नामक। Now there is an issue. He comes in the night. अभी एक समस्या है, वह रात को आता है। Why he is coming to Jesus? वह क्यों यीशु मसीह के पास आता है? John chapter 2 is the reason. और यूहन्ना का 2रा अध्याय उसका कारण है। John chapter 2, Jesus changes from water to wine. और 2रे अध्याय में यीशु मसीह पानी को दाख मधु में बदलते हैं। A Jew looks for a sign. और यहूदी जो है वह चिन्ह खोजते हैं। A Gentile looks for miracle. अन्य जाति चमत्कार को ढूंढते हैं। Now many people after miracle they run away. और बहुत से लोग चमत्कार देखने के बाद भाग जाते हैं। But the root cause of the miracle is the sign which God has done. लेकिन उस चमत्कार की जड़ तो वह चिन्ह है जो परमेश्वर ने किया है। That sign we have to hold उस चिन्ह को हमें पकड़े रखना है and understand he is the Messiah. और ये समझना है कि वह ही मसीहा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा So हो। Jesus Christ is doing a sign in John chapter 2. यूहन्ना के 2रे अध्याय में यीशु मसीह एक चिन्ह दिखाते हैं। And in chapter 3, Nicodemus is coming. और 3रे अध्याय में निकोदेमस उनके पास आता है। John chapter 3 verse 2. यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ेंगे। Yeah. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को नहीं कर सकता अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं। Now he is addressing Jesus as Rabbi. अभी वो यीशु मसीह को रबी कहकर संबोधित करता है। More. मोरे Means teacher. मोरे का मतलब है शिक्षक। MOREH. MOREH। Rabbi means teacher's teacher. रबाई का मतलब है शिक्षकों का शिक्षक। First he is coming and telling, पहले आकर कहता है Rabbi. रबी means he is telling no one can do all the signs what you have done. कोई नहीं ये सब चिन्ह कर सकता जो आपने किए हैं। He is keeping 100-ton ice on top of Jesus. यीशु मसीह के ऊपर वो 100 टन बर्फ रख देता है। Putting lot of butter on Jesus. बहुत मक्खन लगा देता है। And he says, you are such a great person. और कहते हैं आप इतने महान व्यक्ति हैं।
If somebody is coming and telling you, अगर कोई आपसे आकर ये कहता है you have prepared one beautiful mutton biryani आपने बहुत अच्छी मटन बिरयानी बनाई है and chicken 65, और चिकन 65, and they are coming and telling you, और वे आपसे आकर ये कहते हैं nobody can prepare biryani like how you have done. और जैसे आपने तैयार की है आपके समान कोई नहीं बना सकता, What will be your reply? आपका उत्तर क्या होगा? What you will reply? क्या उत्तर देंगे आप? Yeah, actually, I have been preparing biryani for 10 years. हाँ, मैं तो 10 वर्ष से मैं बिरयानी बनाती आ रही हूँ। Now, last week also I prepared. We gave it to a lot of people. पिछले हफ्ते भी बनाया, बहुतों को हमने दिया। This is how we will answer. ऐसा ही हम जवाब देते हैं। But see the reply what Jesus is giving. लेकिन देखिए यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। He is coming and telling, वो आकर कहते हैं no one can do all the miracle like how, perform sign like how you are doing. आपके समान कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं दिखा सकता जैसे आपने किए हैं। John chapter 3 verse 3. यूहन्ना का 3 का 3 वचन पढ़ेंगे। Yeah. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Now Jesus has come directly to the point. यीशु मसीह सीधा मुख्य विषय पर आ गए। There is no connection between what Nicodemus said and what Jesus is speaking. और जो निकोदेमस ने कहा और जो यीशु मसीह ने उत्तर दिया उसमें कोई संबंध ही नहीं। Jesus straight says, यीशु मसीह ने सीधा कहा, verily, verily I say means, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, इसका मतलब Amen, Amen. आमेन आमेन। 2 times he is using Amen. 2 बार वो इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को No, आमेन। no one can see the kingdom of God unless born again. और कोई यदि नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। One shot directly on Nicodemus. और सीधा जैसे निकोदेमस को एक मार डाल ली उन्होंने। Jesus is telling directly come to the point. यीशु मसीह कहते हैं सीधा विषय पर आओ। Now verse 4, अभी चौथे पद में now see the confusion what Nicodemus is having in mind. अभी देखो निकोदेमस के मन में क्या भ्रम है। How a person can go into mother's stomach and how he can become a child and how he can come out. और उसके मन में ये कैसे कोई फिर से अपनी माँ की कोख के अंदर जाकर फिर से वह बाहर आ सकता है। Now his confusion is that. और उसके मन में ये असमंजता है। Now Jesus is telling यीशु मसीह कहते हैं in verse 5 and 6 please. 5 और 6वां वचन पढ़ेंगे। Yeah. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। Now Jesus is explaining यीशु मसीह ये समझाते हैं from the flesh there is one rebirth is there. और Sorry, from the flesh there is a birth there. शरीर से एक जन्म होता है, But what birth I am talking is about the birth in spirit. लेकिन जिस जन्म की बात मैं कर रहा हूँ वह आत्मा से है। I am not talking about birth from the mother. और मैं माँ से जो जन्म होता है उसकी बात नहीं कर रहा। Now did Nicodemus understand what Jesus was speaking? क्या निकोदेमस को समझ में आया कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Nothing. नहीं, बिल्कुल नहीं। Total zero. पूरी तरह से शून्य। Now next Jesus is asking something, telling something more. और उसके आगे यीशु मसीह कुछ कहते हैं। Now verse number 9 and 10. अभी 9 और 10वां वचन हम देखेंगे। He is asking to explain what is the birth in spirit means. और निकोदेमस पूछता है, निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। 9 and 10 please. अभी 9 और 10 हम पढ़ेंगे। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता?
Now the next master shot Jesus is giving. अभी अगला मास्टर शॉट देते हैं यीशु मसीह। Already Nicodemus has got 2 shots. पहले ही निकोदेमस 2 बार तमाचा खा चुके हैं। One this side, one this side he has got एक slapped. गाल में और दूसरे गाल में पा चुके हैं। Now one big shot he is getting. अभी एक बड़ा तमाचा और पड़ता है। You are telling your teacher, तुम कहते हो कि तुम गुरु हो इसराइलियों के, this also you don't know? क्या तू इन बातों को भी नहीं समझता? Now this will be like a big, it will be like an insult और actually. ये बहुत ही जैसे एक बेइज्जत करने वाली बात। Suppose you are telling you are a greatest cook, you can cook everything. आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं सब कुछ बना सकती हूँ। And somebody says, can you make cup of chai? और कोई पूछता है क्या तुम चाय बना सकते हो? Now you say, no, actually I don't know to prepare chai. और आप कहेंगे नहीं, मुझे चाय नहीं बनानी आती। Now what the person will say? तो वो मनुष्य क्या कहेगा आपसे? Are you are telling you are a big cook, now you don't know to prepare chai. और तुम कहते तुम इतने अच्छे रसोई हो, तुम्हें चाय नहीं बनानी आती? Now Jesus is telling exactly like that. यीशु मसीह वैसा ही उससे कहते हैं। How is it you don't know even this? क्या ऐसा है कि तुम इन बातों को भी नहीं समझते? Now actually Nicodemus did not understand anything. निकोदेमस को कुछ समझ नहीं आया, But Jesus wants to explain him something. लेकिन यीशु मसीह उसे कुछ समझाना चाहते थे। Now the main point is coming. अभी मुख्य बात आती है। How did Nicodemus understand? निकोदेमस ने कैसे समझी इस बात को? John chapter 3 verse 13 to 15. और यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 13 से 15 पढ़ेंगे। Yes. और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य ही पर मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now he is a Pharisee. वह एक फरीसी है। He knows the Torah very well. तोरा को बहुत अच्छे से जानता है वो। So Jesus is quoting from Torah. तो यीशु मसीह तोरा से बात कहते हैं। Just as when people were coming in the wilderness, और जब लोग उस जंगल से गुजर कर आ रहे थे, snake was biting all the people. और सांप सबको डंक मार रहा था। At that time Moses lifted up a bronze snake. तब मूसा ने एक जो पीतल का एक सांप को उसने ऊपर चढ़ाया। So now Jesus is telling that incident. तो यीशु मसीह उस घटना को बताते हैं। Just as Moses raised the bronze snake, the Son of Man has to be risen. और ये कहते हैं कि जैसे मूसा ने उस सर्प को ऊंचा उठाया था, ईश्वर और जो मनुष्य का पुत्र है उसको भी ऊंचे में चढ़ाया जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now Jesus says, you are only telling I came from heaven. No. और यीशु मसीह कहते हैं तुम ही कहते हो ना कि मैं स्वर्ग से आया था। I am that person. मैं वही हूँ। I am the Son of Man. मैं ही मनुष्य का पुत्र हूँ। I have to be lifted up. मुझे ऊंचा उठाना पड़ेगा। Then the spirit birth is going to happen. और तभी वह आत्मा से जन्म होगा। When Jesus quoted the Torah, और जब यीशु मसीह ने तोरा को बताया, immediately he understood 1,000 watts bulb is coming inside his heart. और तुरंत उसके हृदय में जैसे एक कितना शक्तिशाली एक बल्ब जैसे चमकता है। Now he understood everything. और सब कुछ समझ गया वो तुरंत। He is very bright. बहुत ही प्रकाशमय हो He is गया। telling, oh, I understood. और वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया। What you are telling, I understood. और आपने जो कहा मैं समझ गया। I understood the gospel. मैं सुसमाचार समझ गया। From where? कहाँ से? From Torah. तोरा से। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And 3:19, John chapter 3 verse 19, Jesus is asking. यूहन्ना के 3:19 में यीशु मसीह कहते हैं, Yes. और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
Light has come to this world, और ज्योति जगत में तो आ चुकी है, but people are still in darkness. लेकिन लोग अभी भी अंधकार में हैं। What is Jesus telling? यीशु मसीह क्या कहते हैं? Why did you come in the night? तुम रात के समय क्यों आए? I am the light of the world. मैं इस जगत की ज्योति हूँ। Now you should have come in the daytime. तुम्हें दिन में आना चाहिए था। You don't have the guts to come in the daytime तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं कि दिन के समय आए, because you are afraid of people. क्योंकि तुम लोगों से डरते हो। You do not want to come and proclaim me openly. और तुम खुलेआम आकर मेरा अंगीकार नहीं करना चाहते। Many people are living like that. बहुत से लोग इसी प्रकार से जीते हैं। When starting they will say I am secret Christian. और शुरुआत में कहेंगे मैं गुप्त मसीही हूँ। And some people for 20 years they are secret Christian only. और 20 वर्ष से कुछ लोग ऐसे ही हैं। Never they become open Christian. कभी भी खुलेआम वह अपने विश्वास का अंगीकार नहीं कर पाते। Still they will be saying some reason I want to be secret. What is the reason you are secret? और अभी भी कुछ न कुछ कारण बताते हैं कि मैं गुप्त मसीही ही बना रहूं। When you will come openly outside? और कब तुम खुलेआम बाहर आओगे? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Verse 21. उसका 21 पढ़ेंगे। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। When light has come means everything is very bright. और जब ज्योति आती है तो सब कुछ बहुत प्रकाशमय दिखाई पड़ता है। Now you just see that one message in the night, maybe half an hour or 1 hour what Jesus gave. और उस रात को जो आधा घंटे या 1 घंटे का जो संदेश दिया यीशु मसीह ने, Permanently Nicodemus changed. और स्थायी रूप से निकोदेमस का परिवर्तन हुआ। A permanent transformation. एक स्थायी परिवर्तन। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we go and tell the gospel to somebody. हम जाकर किसी को सुसमाचार बताते हैं। 10 days he is there. 10 दिन वह रहता है। Then he goes backslide. Again he has gone back to his old way. और वह फिर से फिसल कर अपने पुराने रीति रिवाज पर चले जाता है। See the power of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को देखिए। He told once, एक बार कहा, finished. बस खत्म। He has, it is sealed. और वह सील हो चुका है। Next time he is coming, Nicodemus is coming. Just see when he is coming. और देखिए अगली बार वो कब आता है निकोदेमस। John chapter 7 verse 37 to 38. और यूहन्ना का 7 उसका 47 और 37 और 38 पढ़ेंगे। Yes. फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। The feast days are going in Jerusalem. अभी यरूशलेम में पर्व के मुख्य दिन चल रहे थे। Jesus is preaching in the feast day. और उस दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। Now the Pharisees has decided to kill Jesus. अभी फरीसी ने तय कर लिया कि उनको मार देना है। When they are planning to kill और Jesus, जब वो ऐसी योजना बनाते हैं, one person comes in support of Jesus. एक मनुष्य आता है यीशु मसीह के हित में बात करने के लिए। Who is that person? कौन है वो? He is Nicodemus. और वो है निकोदेमस। But today he did not come in the night. लेकिन आज वह रात के अंधेरे में नहीं आया। Today he has come in the daytime. आज वह दिन के समय में आया। Hallelujah. हालेलुया। He wants to proclaim Jesus directly, openly to people. और वह खुलेआम अंगीकार करना चाहते थे यीशु मसीह के बारे में। Let us read John chapter 7 verse 50 and 51. और यूहन्ना का 7 उसका 51 और 52 पढ़ेंगे। 50 or 51. 50 और 51। निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है?
The title, first he came in the night, that title is always given in the Bible afterwards also. और बाद में सब जगह पर लिखा है कि जो पहले रात के अंधियारे में आया था, Now he is come as an advocate to Jesus. और वह यीशु मसीह के लिए एक वकील के रूप में आता है। Now he is asking a question. अभी एक सवाल पूछता है वो, Does our law condemn a man without first hearing him and to find out what he has been doing? और क्या किसी व्यक्ति को पहले उसकी न सुनकर उसके पहले दोषी ठहराती है हमारी व्यवस्था? Now next in verse 52, और 52 में कहते हैं, now all the Pharisees asking, अभी फरीसी कहते हैं, are you from Galilee? क्या तुम भी गलील का है? Now they want to make it as a location politics. और वह एक इसे स्थानीय राजनीति बनाना चाहते हैं। Ah, you also Punjabi, he also Punjabi, so only you are supporting him. तुम भी पंजाबी, वह पंजाबी, इसलिए तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। You are Telugu, he is also Telugu, so only you are supporting him, na? तुम तेलुगु, वो भी तेलुगु है, इसलिए तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। See how much confusion Nicodemus is handling. देखो निकोडेमस कितनी असमंजसता का सामना करते हैं। One message from Jesus. यीशु मसीह का एक संदेश। One time he came in the night, एक बार रात के अंधियारे में आए, but today he has come in the daytime. लेकिन आज दिन के उजियाले में आए। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, are we ready to come openly out and declare? क्या हम खुलेआम आकर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार हम कर पाते हैं, Or still we want to be in secret? या अभी भी हम गुप्त रीति से ही रहना चाहते हैं? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now we come to the place where Jesus Christ is dying on the cross. अभी हम उस स्थान पर आते हैं जहाँ यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होते हैं। Two important people were involved in the burial of our Lord Jesus और Christ. उनके गाड़ने में दो लोग मुख्यतः स्थान पाते हैं। One is Joseph of Arimathea. एक है अरिमतिया के यूसुफ, Number two, it is Nicodemus. और दूसरे हैं निकोडेमस। Let us turn our Bible to John chapter 19 verse 39. यूहन्ना का 19 उसका 39 वचन पढ़ेंगे। Yeah. निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। Now, I don't know how it is in Hindi, it is put 50. और हिंदी में कैसे 50 सेर लिखा है। The perfume what Nicodemus brought was 75 pounds. और जो गंधरस लेकर आया वह 75 पाउंड था। In Hindi it is put 50 which is 50. और हिंदी में 50 लिखा है। And in KJV English it is put 100. और केजेवी में 100 पाउंड लिखा है। Both are wrong. दोनों गलत हैं। The exact perfume what Nicodemus brought was put in NIV, New International Version, English version, which says 75 pounds. और NIV में ही उसका सही लिखा गया है, वह है 75 पाउंड। Why 75 और pounds? क्यों 75 पाउंड? Now we cannot put perfume as up per our wish. First we have to understand that. हमें समझना है, अपनी मर्जी के मुताबिक हम नहीं डाल सकते गंधरस। The Jewish law will not permit. यहूदी व्यवस्था इसकी अनुमति नहीं देती। So they see the Torah for how much perfume we can put. तो तोरा को वो परख करते हैं कि कितना पाउंड हम डाल सकते हैं। Let us turn our Bible to the book of Exodus chapter 30 verse 23 to 24. और निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय 23 और 24वां वचन पढ़ेंगे। Yes. तो मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक हींग जलपाई का तेल लेकर आना। 500 shekels plus 250 plus 250 plus 500. 500 शेकेल और प्लस 250 शेकेल। 500 plus 250 plus 250 plus 500. और 500 फिर 250 फिर 250 फिर 500। Total is 1500 shekel. और कुल मिलाकर 1500 शेकेल होता है। If you convert 1500 shekels into
pounds, और अगर इस शेकेल को आप पाउंड्स में उसको डालेंगे, it is 37.5 pounds. 37.5 पाउंड होते हैं। 37.5. 37.5। Now, but the Bible says Nicodemus bought 75 pounds. लेकिन बाइबल में लिखा है कि 75 पाउंड लेकर आए। How can Nicodemus bring 75 pounds? Actually, the Torah is permitting only 37.5 pounds. और तोरा में तो 37.5 पाउंड ही लिखा है, लेकिन निकोदेमस कैसे 75 पाउंड लेकर आए? Nicodemus understood one thing very clearly. निकोदेमस ने एक बात बहुत अच्छे से जान ली थी। Now what he called Jesus when he came? जब वो आए तो यीशु मसीह को क्या कहकर पुकारा? Rabbi. रबी। Rabbi means teacher's teacher. रबी मतलब शिक्षकों का शिक्षक। He understood the other two roles of our Lord Jesus और Christ. हमारे यीशु मसीह के दो पात्रों को वो बहुत अच्छे से समझ गए। What are the other two roles of our Lord Jesus और Christ? बाकी दो पात्र कौन से हैं यीशु मसीह के? A king, एक राजा a priest. और एक याजक। The Torah says, तोरा कहती है, if you have to anoint a king, अगर किसी राजा को अभिषेक करना है 37.5 pounds you can use तो perfume. 37.5 पाउंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। If you have to anoint a priest, अगर किसी याजक को अभिषेक करना है 37.5 pounds you can use. तो 37.5 पाउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। But I am bringing 75 pounds. लेकिन मैं 75 पाउंड लेकर आता हूँ। Why? क्यों? Because the person who has now died is a king and a priest. क्योंकि अभी जो मारा गया है वह एक याजक है और एक राजा भी है। Hallelujah. हालेलुया। Nicodemus understood very clearly. निकोदेमस ने बहुत स्पष्ट से समझ लिया। So the Jewish people also have agreed, yes, we will put 75 pounds. तो यहूदियों ने भी ये मान लिया कि ठीक है हम 75 पाउंड डालेंगे। So it is a very grand burial which is happening. और बहुत ही एक बड़े उत्सव के समान ये गाड़ा जाना हुआ। Because if Nicodemus is coming means क्योंकि अगर निकोदेमस आता है he is the member of Knesset. और वो जो उस संसद का एक सदस्य, So many soldiers also will come. तो बहुत से सिपाही भी उसके साथ आएंगे। And he is putting 75 pounds acknowledging he is a king and a priest. और वो 75 पाउंड डालते हैं ये अंगीकार करके कि वो एक राजा और एक याजक भी हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, Nicodemus listened to only one message. निकोदेमस ने सिर्फ एक संदेश सुना। Only one message. सिर्फ एक संदेश In the night. रात के समय, But it transformed him. लेकिन उनका परिवर्तन हुआ उसके कारण। Afterwards, he has started coming in the daytime acknowledging Jesus publicly. और उसके बाद वह दिन के समय आना शुरू किया खुलेआम यीशु मसीह को अंगीकार करके। What is the work which he has done? और कौन सा काम उन्होंने किया है? Is will be spoken in the history permanently. और जो भी उन्होंने किया इतिहास में हमेशा वह बोला जाएगा। As long as this world is there, और जब तक कि ये संसार रहेगा, we will be speaking. Nicodemus came and buried the body of Jesus. Nicodemus came and buried the body of Jesus. We will be speaking. और ये निरंतर कहा जाएगा कि निकोदेमस ने आकर यीशु मसीह के शव को उन्होंने दफनाया, निकोदेमस ने आकर उनके शव को दफनाया। Such a great job Nicodemus did. इतना बड़ा कार्य निकोदेमस ने किया। Listening to what? किसकी बात सुनकर? One message. सिर्फ एक संदेश। But there was another one guy who was with Jesus for 3.5 years. लेकिन एक और मनुष्य था जो यीशु मसीह के संग संग 3.5 वर्ष रहा, who was taking care of money. और जो पैसे की देख रेख कर रहा था। After listening to all the messages what Jesus spoke, और यीशु मसीह के इतने प्रचार और संदेश को सुनने के बाद for 30 pieces of silver he betrayed Jesus. चांदी के 30 सिक्कों के लिए उन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया। This money devil Judas, और ये जो पैसे का जो शैतान था यूदास,
He betrayed Jesus. उन्होंने धोखा दिया यीशु मसीह को। So he got 30 pieces of silver. उसे चांदी के 30 टुकड़े तो मिल गए Then he committed suicide. और फिर आत्महत्या की Then he threw the pieces of silver. और फिर उन सिक्कों को उठाकर फेंक दिया था उसने। They took all the silver और pieces सारे चांदी के सिक्कों को उन्होंने लिया and they told this money should not go back to the temple और ये कहा ये पैसे वापस मंदिर में नहीं जाएंगे because this is blood money. क्योंकि ये लहू के पैसे हैं। And they brought one land in that money, और उन पैसों से एक जमीन खरीदी and that land was called Akaldama. और उस जमीन का नाम रखा गया अकलदामा। When I went to Israel, जब मैं इस्राएल गया I was standing on Mount Scopus. और स्कोपस पहाड़ पर मैं खड़ा था। In Jerusalem, I was standing on Mount Scopus. यरूशलेम में स्कोपस पहाड़ पर मैं खड़ा था And from there down I was seeing. और वहां से नीचे देख रहा था मैं। It was a night time. रात का समय था। It was beautiful lights in Jerusalem. बहुत सुंदर लाइट्स थी यरूशलेम में All the field was green. और सारा जो खेत था वहां पर हरियाली थी। Still that thought is still in front of my eyes. अभी भी वह दृश्य मेरे आंखों के सामने है। But there is one land. There was one land there. लेकिन एक जमीन का टुकड़ा है वहां पर Total black in color. पूरी तरह से काला। So I asked how this land is alone black. तो मैंने पूछा कैसे ये जमीन सिर्फ इतना काले में है। I have never seen a land which is black in color. मैंने कभी किसी जमीन को इतना काला नहीं देखा। They told me उन्होंने कहा this is Akaldama, ये अकलदमा है the land of Judas Iscariot. और जुडास इस्करियोट की जमीन जो पैसे खरीदे गए थे उनसे। Judas Iscariot left Akaldama. और जुडास इस्करियोट ने अकलदमा को छोड़ दिया। But Nicodemus left a remarkable history which we will speak for years and years. लेकिन निकोदिमुस ने ऐसा इतिहास रचाकर वो गए हैं जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करेंगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, what are you going to leave and go? आप क्या छोड़कर जाएंगे? After our life, हमारे जीवन के बाद is there something which we have done which people are going to speak? क्या हम ऐसी कोई बात छोड़कर जाएंगे जिसके बारे में लोग हमेशा बात करेंगे? Something you will do which heaven will be speaking about you. और जो आप ऐसा कार्य करेंगे जो स्वर्ग आपके विषय में बताएगा। Some people are there. कुछ लोग ऐसे हैं। I didn't do any bad, I didn't do good also. मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने कुछ अच्छा काम भी नहीं किया। They are the people who live for themselves. और वो ऐसे जो अपने आप के लिए जीते हैं। I eat, I sleep, I go to toilet, I do everything on my own. मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, सब अपने लिए। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, you are not called to live a life for yourself. तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया गया कि तुम अपने लिए जीवन व्यतीत करो। You have to understand one thing. तुम्हें एक बात समझनी है, Our Lord Jesus Christ will never interfere in your will. हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपकी इच्छा में दखल अंदाज नहीं करेंगे। He will not interfere. कभी दखल अंदाज नहीं करेंगे। I want to become this, I want to become that. He will leave it. Okay. मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा ही छोड़ देंगे। He will speak to you. तुमसे बात करेंगे। But you have to take the decision. लेकिन तुम्हें निर्णय लेना है। Do you know what the Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? He is knocking at your door. वह दरवाजे पर आकर खटखटाते हैं। In Revelation chapter 3 it says, प्रकाशित वाक्य के 3 में ऐसा लिखा He है। is knocking at whose door? किसके द्वार पर खटखटाते हैं? He is knocking at the door of the church. और वह कलीसिया के द्वार पर खटखटाते हैं। He is knocking at the door of your family. तुम्हारे परिवार के दरवाजे पर खटखटाते हैं। Till you open, he will be knocking. और जब तक कि आप खोले वह खटखटाते रहेंगे। What you want to do in your life? आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हैं? I want to do PhD. I want to become a doctor. No, good. I want to become an engineer. I have this goal. I have that goal. I want to make a big building.
मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक बड़ी इमारत बनाना चाहता हूँ। ठीक है सब कुछ। I want to travel to America. I want to travel to Singapore. I want to see lot of places. और मैं अमेरिका घूमना चाहता हूँ, सिंगापुर जाना चाहता हूँ, बहुत से देश घूमना चाहता हूँ। Can you hear one voice क्या आप एक आवाज आप सुन पाते हैं where Jesus is knocking at your door? जहाँ पर यीशु मसीह आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं? My dear son, मेरे प्यारे बेटे, my dear daughter, मेरी प्यारी बेटी, this gospel has to be told to many people. ये सुसमाचार अभी बहुतों को बताना बाकी है। I am trusting you. मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। He is not forcing you. वह तुम पर दबाव नहीं डालते। Can you hear that sound which Jesus is knocking your door? क्या आप उस आवाज को सुन पाते हैं जो यीशु मसीह आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं? Inside, are you able to hear inside your heart? क्या आप अपने हृदय के अंदर ये सुन पा रहे हैं उनकी आवाज? Jesus is speaking to you. Are you able to hear inside यीशु your voice? मसीह आपसे बात कर रहे हैं। क्या अपने हृदय में वह आवाज आप सुन पाते हैं? Nicodemus was able to hear. निकोदेमस सुन पा रहे थे। Jesus was knocking at his door. Nicodemus heard that voice. यीशु मसीह उनके द्वार पर खटखटा रहे थे। निकोदेमस ने उस आवाज को सुना। But Judas Iscariot heard hundreds of messages. लेकिन जुडास इस्करियत ने कितने 100 प्रचार से ऊपर सुने होंगे। Nothing went into his heart. कुछ भी हृदय में नहीं गया। Can you hear the voice of Jesus today? क्या आज आप यीशु मसीह की आवाज को सुन पाते हैं? What you are going to leave for the next generation? अगले पीढ़ी के लिए आप क्या छोड़कर जाएंगे? Are you teaching Torah to somebody? क्या आप किसी को तोरा सिखाते हैं? Through your life, what is the use? आपके जीवन के द्वारा क्या लाभ है? This is the question which God is putting in और front of ये you सवाल now. परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। Our Lord will never interfere in your will. आपकी इच्छा में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे हमारे प्रभु। You can tell him today, आज आप उनसे कह सकते हैं, God, परमेश्वर, my plan is to build a very big factory today. और मेरी योजना की मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊं आज। Do you know what God will say? क्या आप जानते हैं ईश्वर क्या कहेंगे? Okay, better. ठीक है बेटा, He will not say anything. वो कुछ नहीं कहेंगे। He wants you to understand वह चाहते हैं कि तुम समझो what is in the will of the Father. कि पिता के हृदय में क्या इच्छा है तुम्हें लेकर। Do you know he told about David one thing? एक बात उन्हें दाऊद के बारे में कही, आप जानते हैं? David, the man after my heart. दाऊद जो मेरे हृदय का मनुष्य। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? David's heart is my heart हृदय, दाऊद का हृदय मेरा हृदय है। because he understands what is inside my heart. क्योंकि वह समझता है कि मेरे हृदय के अंदर क्या है। Can you understand the heart of God today? क्या आज आप परमेश्वर का हृदय समझ पाएंगे? How long you will be running, my dear child of God? कितनी देर तक आप भागते ही रहेंगे ऐसे, Looking at various things. कितनी चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाकर। And some people are very conveniently telling, और कुछ लोग बहुत सुविधा पूर्वक ये कहते हैं, no, God is blessing this also, God is blessing that also. नहीं नहीं, परमेश्वर इसको भी आशीष करते हैं, उसको भी आशीष करते हैं। God will bless everything. परमेश्वर सबको आशीष करेंगे। But can you understand what God wants you to do? लेकिन क्या आप समझ पाएंगे परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? Will you hear the voice of God? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे? Can we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Are you going to leave Akaldama? क्या तुम अकलदामा छोड़कर जाओगे इस संसार से? After hearing the messages for 3.5 years, 3.5 वर्ष से सब इतने प्रचार सुनने के बाद, the man who betrayed Jesus, और जिस मनुष्य ने यीशु मसीह को धोखा दिया, but after listening to one message, लेकिन एक संदेश सुनने के बाद, the man who came for the defense of Jesus, और जो यीशु मसीह के हित में आकर बात किए, are you going to become like Nicodemus? क्या तुम निकोदेमस के समान बनोगे?
Or are you not going to do anything? No, no, no. I have some plans in my life. या आप ऐसा कहकर बैठे रहेंगे कि मेरे जीवन में मेरी अपनी योजनाएं तो है। Which plan you are going to do, my dear child of God? किस योजना को आप पूरा करेंगे मेरे प्रियो? Are you going to say, no, God did not tell me? क्या आप कहेंगे नहीं, परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा? Do you know why God has not told you? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपसे क्यों नहीं कहा? You have not heard that Jesus is knocking in your door. और तुमने नहीं सुना कि यीशु मसीह तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। You don't have time to hear. तुम्हारे पास समय नहीं सुनने के लिए। Always you see TV and phone and here and there. When you will have time to listen? हमेशा टीवी देखते रहना, फोन देखते रहना, इधर उधर जाना, कब समय पाएंगे आप? When is the last time you sat alone in the presence of God? कब था आखिरी समय जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अलग बैठे थे? Elijah was in Mount Carmel. और एलिया कार्मेल पर्वत पर थे। There was wind. कितनी हवा थी वहाँ पर? God was not there. परमेश्वर नहीं थे उसमें। There was thunder. इतनी बिजली और गर्जना हुआ। God was not there. परमेश्वर नहीं थे वहाँ पर। But God spoke to him in a mild voice. लेकिन परमेश्वर ने एक धीमी आवाज में उनसे बात की। Do you have time to listen to God? क्या आपके पास समय है परमेश्वर की सुनने के लिए? Decide to do something for Christ. कुछ तय करो कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूँगा। He is knocking at your door. वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। Shall we close our eyes? क्या अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। We want to do something for you, Lord. हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर। We don't want to leave Akaldama. हम अकलदमा नहीं छोड़कर जाना चाहते। We don't want to betray you. हम आपको धोखा नहीं देना चाहते। Help people to listen to your voice. और लोगों की मदद करें कि आपकी आवाज को सुन पाए परमेश्वर। We know you are a gentleman. हम जानते हैं कि आप एक जेंटलमैन हैं। You will never force your will upon आप us. अपनी इच्छा कभी भी थोपेंगे नहीं हम पर। Help us to ourselves understand that you are knocking at the door. और हमारी मदद करें कि हम पहचान पाए कि आप दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। Please bless all your children. अपने बच्चों को आप आशीष करें प्रभु। Help them to understand your will in your life. और आपकी इच्छा उनके जीवन में वो समझ पाए, उनकी मदद करें प्रभु। Many people are praying that you have to bless their will. बहुत से लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि आपको उनकी इच्छा को आशीष करना है। But today we are not asking that, Lord. आज हम ऐसा नहीं मांगते प्रभु। Today we are asking that we want to do your will. आज हम मांगते हैं कि हमें आपकी इच्छा को पूरा करना है प्रभु। Bless all your children. अपने बच्चों को आशीष करें Your grace rest upon them. और आपका अनुग्रह सब पर ठहरा रहे प्रभु। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन। Amen.